to record to this. So friction is a force which is a horizontal component of reaction force, and this angle is lambda, and this is called as angle of friction. एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ आया सबको? आना बोली। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. राइट नाउ फ्रिक्शन यहां से आता है, ठीक है। अब होता क्या है, मतलब इसके कारण आया तो इट्स अ कंपोनेंट ओनली, राइट। नाउ this interlocking and this interatomic bonding thing, it happens because of, obviously, the two objects are in contact. So friction is a force which appears, I am saying appears, फ्रिक्शन कोई लगाता नहीं है, याद रखना। फ्रिक्शन कोई बाहर से आके अप्लाई नहीं करता है, फ्रिक्शन इज नॉट अप्लाइड, इट appears. So friction is a force which appears when there is relative motion, when there is either the tendency of relative motion or relative motion between the two bodies which are in contact. So now when you try to apply this block, जैसे for example, all of you can check, go to your, try pushing any of your heavy objects, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोगों ने हैवी ऑब्जेक्ट पुश करके देखा होगा, इनिशियली यू आर नॉट एबल टू मूव इट, यस और नो, ऑल ऑफ यू। अबे तुम लोग सब कैमरा बंद करके बैठे हुए, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ बे? बहुत हो गया तुम लोग का ये मजाक है। वाह, ये लो तुम भी आकाशवाणी सुनो आज। अब यही आदमी पढ़ाएगा तुमको, पीली नीली टी शर्ट वाला, नीली शर्ट वाला, पढ़ो ऐसे ही। नालायक को मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? काली स्क्रीन को है। वो दो लोग रिलेटिव के घर गए हुए हैं, वो चालू नहीं कर सकते, इसके यहाँ नेट खराब है, कम से कम जो चालू कर सकता है वो तो करो। एनीवेज, तो इफ यू ट्राई पुशिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट, क्या होता है जब भी हम एक भारी ऑब्जेक्ट, शाम्भवी जी बताइए, जब हम एक भारी ऑब्जेक्ट पुश करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? पुश कर सर पाती हैं आप या नहीं कर पाती नहीं हैं? नहीं नहीं भाई। कर पाती है ना। तो ये कौन आपको अपोज कर रहा है? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ। आप लोगों ने यहाँ लिखा है, देखिए, हियर यू हैव रिटन static friction. It opposes the tendency of, there is a tendency only, there is no actual slipping, so it is a tendency of relative motion between the bodies which are at rest with respect to each other, right? I hope all of you understood this, yes or no? यस सर। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन समझ आया नहीं आया सबको? श्रीवत्स, दीव लिखार, शांभवी, Yes. कुशाग्र, Yes, sir. श्रीनिधि, ओके। नाउ कम्स, शांभवी समझ आया बेटा? यस सर। हाँ, एंड इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। सो द स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे यहां पर फर्स्ट वन वाज स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हमने पहला पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इट अपोजेस द इट अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ, याद रखो, मोशन को अपोज नहीं करता है फ्रिक्शन कभी भी, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इट अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है, बिटवीन द टू बॉडीज which are in contact, right? So it is given as, Fs, and it lies between
a maximum value and a minimum value, which is 0. So the value of Fs max is given as this. Fs max is proportional to normal reaction. And from here we get the proportionality constant as mu s into normal reaction. This mu s is called as coefficient of static friction. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. है ना? Yes. Then comes kinetic friction. Kinetic friction opposes, second friction is kinetic friction. Kinetic friction क्या करता है? It opposes the relative motion between the two bodies which are in contact. Right? It is given as, again, when there is actual slipping taking place. जब यहाँ पे मान लो एक ब्लॉक है और इसने क्या किया, यहाँ पर इसको हमने पुश कर दिया with some velocity. We pushed this block. We pushed this block with some velocity, right? U. And obviously the block is sliding over this surface. तो ये जो तुम इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग देख रहे हो, दिस बॉन्ड गेट्स ब्रेक एंड द ग्रूव्स आल्सो उतना स्ट्रेंथ से इंटरलॉकिंग नहीं कर पाते. So that is when the kinetic friction comes into play. This is Fk. It is given as Fk is again proportional to normal reaction only, and the proportionality constant is mu k times n. I hope all of you understood this. Yes or no? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Right. This is called as coefficient of kinetic friction. ठीक है? इसको आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए और जल्दी से. तो सेल्फ एडजस्टिंग कौन है? मैक्सिमम, ये स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बिकॉज इट हैज अ रेंज ऑफ वैल्यू, राइट? काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ स्टैटिक फोर्स, sorry, not static, constant force, right? So it has a fixed value. Okay, ये लिखना चाहते हैं आप लोग? हेलो, लिखिए, राइट इट. नोटेड? Yes, sir. All of you, rest of you? 1 second, sir. Okay.
हो गया श्रीवत्स? Yes, sir. Okay. So now let's try to learn. Third friction we are not discussing. Rolling friction we will learn about it in rotational mechanics. Right. Now comes how to find the direction of friction. How to find the direction of friction acting between the bodies. So first step, all of you have written it, so I'll just use those steps to help you to teach you how to find it, right? So these are the two blocks. These are the two blocks. This is block A, this is block B, and force is acting on this block A. All of you, please pay attention, okay? There is friction between A and B. Let's say mu1. There is friction between B and the ground. Right. What was the first step of the mind map? It says separate the surfaces in which you want to see the friction from each other. All of you, please read the statements, okay? Read the statements. First step क्या है शांभवी जी बताइए? Separate the Hello. surfaces in which you want to see friction from each other. So how many surfaces? Where is the friction acting on the surfaces, Shambhavi? Third was it's acting in M2, like between block B and the surface. है? Between block B और वो surface पे friction act कर रहा है. बस एक ही जगह पे एक्ट कर रहा है. और फिर block A और B के बीच में. So हाँ तो इतना सारा है ना. तो how will we find out? There is bottom of A. All of you please pay attention. There is bottom of A, right? So separate the surfaces first. So it will look like this. So there are four surfaces where the friction will act. All of you please pay attention. Very important. There are four surfaces where the friction will act. A, B and ground. Surfaces ले लो इसको. So it will act at bottom of A, top of B, bottom of B and top of the ground. So how many surfaces are there? All of you, how many surfaces are there? 4. Four surfaces. Right. Now what will you do? Identify the block on which the force is acting. तो कैपिटल F कहाँ एक्ट कर रहा है? ब्लॉक A पे. Got it? Capital A is acting on capital F is acting on block A. Now we want to check what is the direction of friction acting at bottom of A. क्या ढूंढना चाहते हैं हम ढूंढना चाहते हैं बॉटम ऑफ ए पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा. ठीक है, तो क्या करेंगे? स्टेटमेंट में कहता है उस ऑब्जेक्ट पे खड़े हो जाओ या उस सरफेस पे खड़े हो जाओ. ऑब्जर्व द रिलेटिव मोशन ऑफ ईच सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस विथ विच इट इज इन कॉन्टैक्ट. सो इफ आई वांट टू चेक friction at bottom of A, on which surface should I stand? Shrivats, if we want to see friction at the bottom of A, from where should we observe that surface? So from top of B. Very good. From top of B. I hope all of you understood this, what he means. Because top of B is in contact with bottom of A, right? Shambhavi, समझ आया बेटा? श्रीनिधि? हाँ. कुशाग्र? Yes. So we stand on the top of B.
right? Now with respect to this man, where is A going? Shrivats, with respect to this man, where is A going? So in east direction. Forward direction, Oh, right? Forward backward बोलना है अभी. तो friction will oppose this relative motion of block A. So this is the direction of friction 1 acting at the bottom of block A. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Now we want to check friction at top of B. तो शांभवी जी बताइए, where should we stand? शांभवी, अगर ब्लॉक बी के टॉप में मुझे फ्रिक्शन निकालना है डायरेक्शन, तो हमें कहाँ से ऑब्जर्व करना पड़ेगा बेटा? सर अगर मैं ब्लॉक बी अरे भाई, बी को तो सरफेस, निकालना ही है. हाँ हाँ बी का सरफेस तो पे, निकालना ही है, तो बी किसके साथ कांटेक्ट में है बताओ? बी बॉटम ऑफ ए के कॉन्टैक्ट है। तो बॉटम ऑफ ए पे खड़े होगी ना. हाँ जी हाँ जी। फिर जो लिखा है वो पढ़ना है बेटा, उसका उपयोग करना है. और ठीक है, तो नाउ वी स्टैंड ऑन बॉटम ऑफ ए. नाउ शांभवी टेल मी, विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन, वेयर इज बी गोइंग? ये तुम हो, ये ऑब्जर्वर जो है खुद को बना लो तो ज्यादा अच्छा से ऑब्जर्व होता है. तो अब बताओ, जब इसके रिस्पेक्ट में तुम देखोगी बी को, तो बी कहाँ जा रहा है? आगे सॉरी. आगे आगे। अरे हे होगा। देवी, तुम ए हाँ पे जी। बैठी हो, ए पे लग रहा है हाँ। फोर्स, तो ए कहाँ जा रहा अच्छा था? अच्छा, ओके पीछे जाएगा, बेटा ओके ओके। दिमाग को ना, सुनो ना, मैं एक बात कहता हूँ. मैं, ये तो कॉमन सेंस है बेटा. बचपन से तुम ट्रेन में बैठ के आगे जा रही हो, देखा नहीं तुमने? प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए लोग पीछे जाते हैं, देखा है कि नहीं देखा है? हाँ जी हाँ जी। हाँ. तो friction will act in the forward because B is moving with respect to this man in the backward direction. So friction will oppose this relative motion and it will act in the forward direction. समझ आया नहीं आया? हाँ और ये दोनों जो फ्रिक्शन होंगे, ये इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे. These two frictions F1 and F1 will be equal and opposite because action का reaction pair. If one of the friction is action, the other one is reaction. I hope all of you understood this. Yes or no? Hello. यस सर। Now comes, yes. चलिए शांभवी जी बताइए, आप ही बताइए इसको. बी के बॉटम पे फ्रिक्शन निकालना है, कहाँ खड़े होंगे शांभवी? तो एस एस पे। वेरी गुड, एस पे खड़े होंगे. अब बताइए, बी कहाँ जा रहा है? सर बी पीछे। अरे भाई, F1 लग रहा है बी पे फॉरवर्ड, बी पीछे हाँ जाएगा बेटा. क्या? अरे हर बार चेंज होगा ना. अच्छा। हाँ किसके ओके रिस्पेक्ट ओके। में देख रही हो? पहले तुम वो हरे वाले आदमी के रिस्पेक्ट में देख रही थी, अब तुम किसके रिस्पेक्ट में देख रही हो? गुलाबी वाले आदमी के रिस्पेक्ट में. समझ रही ओके हो कि नहीं ओके समझ ओके रही हो? हाँ ओके आई अंडरस्टैंड। तो ये इसके इसके रिस्पेक्ट में बी कहाँ जा रहा है? फॉर फॉरवर्ड. तो बी पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बॉटम में? बैकवर्ड. बैकवर्ड। ये भाई बहुत आसान है बेटा ये. तो नाउ कम्स श्रीवत्स, यू अंडरस्टूड और नॉट? कुशाग्र बैनर्जी, दीव लिखार, यू अंडरस्टूड और नॉट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Sir. श्रीवत्स, श्रीवत्स, चलो आ जाएगा. श्रीनिधि, यू अंडरस्टूड और नॉट? तो अब क्या हुआ यहाँ पर? नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड ऑन सरफेस के टॉप पे कहाँ लगेगा. तो क्या होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट. तो इक्वल एंड ऑपोजिट क्या होता है इधर? यस और नो? दिस इज हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. अंडरस्टूड? हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. शांभवी, दीव, श्रीवत्स, यस सर। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो, Yes, sir. if all of you have understood it, you have to write it and then you do this problem. ये सॉल्व करना है. हाँ, ये एक ब्लॉक है,
This is the second block, and the block is kept on the surface. This is A, this is B, this is mu1, this is mu2. Okay. And now the force is acting on block B. The force is acting on block B. तो आप लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है, अरे डीसी क्या करता है, हाँ, आप लोगों को बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द हाउ मेनी सर्फेसेस, फोर सर्फेसेस, बॉटम ऑफ ए, टॉप ऑफ बी, बॉटम ऑफ बी, टॉप ऑफ ग्राउंड, राइट? हेलो हेलो हेलो, से यस और नो? Yes, sir. Absolutely. तो Yes, sir. आप निकाल के दिखाइए, आप लोग फटाफट करिए इसको। All of you send me your answers, okay? In the comment window, send me your answers. आंसर्स भेजने हैं भाई। So where do I send my answer? I think I've sent on personal. हाँ तो उसी में भेजो ना, और कहाँ भेजोगे? Yes. ये जूम जूम में चैट में लिखना अच्छा आता है ना बेटा? अच्छा अच्छा
ओके ओके। हाँ जूम में भेजो। सर किस ब्लॉक का फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना था? सारे ब्लॉक का ना, जहां जहां फ्रिक्शन है वहां वहां निकालना है, जैसे अभी हम लोगों ने किया था। ओके सर। चार जगह लग रहा है ना फ्रिक्शन, बॉटम ऑफ ए, बॉटम ऑफ बी, टॉप ऑफ बी। यस। सर मुझे चेक इट अगेन सेंड कर। देखो शाम्भवी, तुमने ना रूल्स फॉलो नहीं किए बेटा। जो स्टेप्स लिखवाए हैं ना, हेलो, जी। जो स्टेप्स हेलो। लिखवाए हैं ना, हाँ। वो फॉलो करो ना। गलत है? गलत है तभी बोल रहा हूँ ना, नहीं तो क्यों बोलता अच्छा मैं। अच्छा अच्छा। बाकी कहाँ है भाई? सर आई थिंक एक्चुअली टाइप्ड आउट फोर्स कहाँ पे लग रहा है, क्योंकि मैंने कॉपी में वही बनाया, तो मैंने फोर्स कहाँ लग रहा है मैंने वो टाइप आउट कर लिया। सॉरी। सर मैंने वो टाइप आउट किया है जो जहाँ पे फोर्स लग रहा है, क्योंकि मैंने अपने कॉपी में फ्रिक्शन की डायरेक्शन अंडरस्टूड। अरे भाई, तुमने ब्लॉक ए में बैकवर्ड लिखा हाँ है। बैकवर्ड लिखा है, देखिए आई टाइप्ड आउट जहाँ कहाँ पे फोर्स लिख रहा है, मैंने फ्रिक्शन का नहीं लिखा, फ्रिक्शन इसका उल्टा हुआ है ना, नहीं तो वो जहाँ पे फोर्स लिखा है मैंने वो टाइप आउट फोर्स कर तो दिया। बी पे लगा रहे हैं ना हम लोग। हाँ वही वही मैंने टाइप आउट कर दिया, उसके एक फोर्स एक काम करो, जहाँ पे तुम उसका उसको ठीक कर दो, है ना, ऐसे हाँ वो लिखो। कर इसको दिया। कैसे लिखना है? टॉप वही ऑफ ए, बॉटम ऑफ ए, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? टॉप, बॉटम ऑफ ए, बैकवर्ड की फॉरवर्ड सामने लिख दो। हाँ जी टॉप हाँ ऑफ जी बी, वही लिख। बैकवर्ड की फॉरवर्ड। बॉटम ऑफ बी, बैकवर्ड की फॉरवर्ड। टॉप ऑफ ग्राउंड, बैटर की, सॉरी, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। खत्म, लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। क्या करें, कम पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, तो ऐसे समझ ही नहीं आता है ना मुझे। हाँ। कुशाग्र बनर्जी, वेरी गुड, तुम्हारा आंसर ठीक है। थैंक यू। श्रीवत्स, श्रीवत्स, टॉप ऑफ बी गलत है, चेक कर लो। तुमने भी वही गलती की जो इस बच्चे ने की है, शाम्भवी ने सेम मिस्टेक। दीव लिखार, कहाँ है तुम्हारा? हाँ, मैंने किया तो है। कहाँ किया है? मेरे को सब तो नहीं मिल रहा है। सब पर्सनली किया है। वो चैट खत्म हो गया तुम्हारा, पता नहीं क्या हुआ, तुम बाहर गए, चैट उड़ गया तुम्हारा, देखो। दिखाई दे रहा है तुमको? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। मैं 9:43 को ही किया था। अरे दिख नहीं रहा है ना रे भाई। अच्छा, सर टॉप हाँ ऑफ हाँ, बी मिला भी मिला आगे। मिला मिला। मिला मिला। हाँ ठीक है तुम्हारा। हाँ, क्या बोल रहे थे श्रीवास, तुम बोलो। सर बी आगे जा रहा है तो टॉप ऑफ बी का फ्रिक्शन पीछे जाएगा ना? कहाँ से देखने पे? ए से देखने पे?
हाँ सर, ए के बॉटम से देखने पर। हाँ, तो ऑब्वियसली पीछे जाएगा। हाँ सर, मैंने तो बैकवर्ड ही लिखा है। हाँ, और बॉटम अप भी। तो बॉटम ऑफ बी भी बैकवर्ड जाएगा ना, क्योंकि ब्लॉक आगे बढ़ रहा है। अभी ठीक किया तूने, पहले से ठीक था ये। सर पहले से ही ऐसा था सर। फिर ध्यान नहीं दिया, यूज करिए। हम्म, शाम्भवी ठीक है बेटा, वेरी गुड। सो ऑल ऑफ यू गॉट दिस। एक और करेंगे, आज यही काम है हमारा। नेक्स्ट क्लास में वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फ्रिक्शन। सो लेट्स मेक अ 3 ब्लॉक सिस्टम हियर। वन, ये ए, ये बी, ये सी, ये μ1, ये μ2 और ये μ3। ध्यान से सुनना मेरी बात, बार बार नहीं बताऊं। फोर्स मैंने लगाया यहाँ, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ईच ऑफ द सर्फेसेस। हाउ मेनी सर्फेसेस आर देयर, कौन बताने वाला है मुझे? चलो दीव लिखार बताओ, कितना सरफेस है यहाँ पर? सर 1 2 3 4 सर टोटल 5 सर्फेसेस है। विवत्स, कितना सरफेस? और 6। शांभवी मौर्य, कितने सरफेसेस? सर 6। दीव लिखार, कितने सरफेस? ऐसा मैं गलती से ग्राउंड को मतलब किया नहीं, इसलिए। तो समझ आया ना? हाँ हाँ। चलो, सबको पता चल गया 6 सरफेस है। चलो डायरेक्शन देखो जल्दी से, फटाफट करो भाई, करो जल्दी जल्दी। हम्म।
चलो भैया आ जाओ, ऑलमोस्ट सबने सही लिखा है ये। सो टॉप ऑफ बी, बॉटम ऑफ बी, backwards and backwards. I hope all of you understood this. Yes or no? Bottom of A, forward. Bottom of C, forward. Top of C, backward. Anybody who has a different answer to this? Hello? अरे हाँ ना बोलो। नो सर। ठीक है, नो सर। तो practice two more questions based on this. ये capital F को put it at A and put it at C. So there are two variants to this question. Practice when F is इसी में, हाँ, find, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द थ्री ब्लॉक्स ऑन ऑल द सरफेसेस। मैं ब्लॉक क्यों बोलूं? व्हेन कैपिटल एफ इज एक्टिंग ऑन नंबर वन ए, नंबर टू ऑन सी। ठीक है, हेलो, यस सर। चलो शाबाश, ये करके मुझे भेजो। ठीक है, हेलो, यस सर। चलिए, तो फिर भेजिए आप लोग, और हम लोग मिलेंगे कब? संडे को। ठीक है, संडे का अगर मैं बाहर गया तो देवांश सर क्लास लेंगे, नहीं तो आई विल बी